Assalamu alaikum or good morning everyone from Shiraz, one of the most beautiful Iranian city जहाँ मैं पिछले दो दिन पहले पहुँचा था और आज हम जो है वो शिराज़ को जाके अच्छी तरह एक्सप्लोर करेंगे। इस सिटी में बहुत कुछ देखने के लिए है और मेरी बड़ी अरसे से ख्वाहिश थी और मैं सिर्फ अकेला आज सिटी को जाके विज़िट नहीं करूँगा, मेरे साथ हैं नादिया शी इज़ द टूर गाइड, शी इज़ हियर. Hello everyone, welcome to Shiraz. And actually, I made all the introduction in Urdu, but from now on, we will have a mixture of English and Urdu in this vlog. So I hope you Perfect. don't mind, and I hope my viewers don't mind either. Thank you so much. The first of all, which place we are going to visit is So beautiful mosque. That original name from this mosque is Nasir al-Mulk Mosque, but it's very well known from all around the world to Pink Mosque. Pink Mosque. The tourists say only Pink Mosque, Only but Pink Mosque is enough. so अभी हम जाल के जी मॉस्क को विजिट करते हैं और नादिया is the tour guide. She is going to help me visit the city course. today. It will be Yes. full 24 hours Yes. of seeing the sightseeing of all the Shiraz Shiraz, places. yes. So let's go. हम लोग जब इन नासिरुल मुल्क मस्जिद के अंदर खड़े हैं और ये इंतहाई खूबसूरत, बहुत ही इम्प्रेसिव मस्जिद है। जैसा कि मैं इसको इमेजिन करके आया था, बड़े अरसे से मेरी ख्वाहिश थी मस्जिद देखने की और अभी मस्जिद के अंदर खड़े हैं और हर तरफ से आपको डिफरेंट कलर्स नज़र आ रहे हैं। थोड़ी सी हिस्ट्री और इसके जो बाकी थोड़ा सा पैटर्न जो इसका टाइल वर्क है या यहाँ पे जो आप मिरर्स देख रहे हैं वहाँ से जो लाइट आ रही है उसकी जो हिस्ट्री है वो हम नादिया से पूछते हैं। नादिया विल एक्सप्लेन टू अस अबाउट द डिफरेंट कलर्स that we see right now. First of all, can you tell us about the mosque? Sure, How sure. old the mosque is? This mosque is from 19th century. They done by a son of the governor of Shiraz called Mr. Nasir al-Mulk. In this mosque, we have a beautiful stained glasses, mix of the warm and cold colors that they brought from Ukraine. But it's not the end of the story. When we have all this beautiful shadow of this color inside, all annoying animals like mosquito, cockroach and rat, they're afraid to come here. So prayer can pray peacefully. So it's like when the light is coming, it's Yes, like burning yes. and they are Exactly, afraid to they're come afraid inside. to come inside. So that's a trick about that. But the mosque is not called Pink Mosque because of these No, lights. the mosque called Pink Mosque because of the tile. So can you please explain course. to us the tiles? यहाँ पे आप देख रहे हैं बहुत ही डिफरेंट कलर्स की टाइल्स हैं। यहाँ पे गोल्ड कलर है, ब्लू यूज़ किया गया है, पिंक है, ग्रीन है, बहुत डिफरेंट कलर्स यूज़ किए गए हैं। सो नादिया, कैन यू प्लीज़ एक्सप्लेन अस अबाउट द पिंक कलर, व्हाई देयर इज सो मच पिंक कलर हियर? Yes. Actually, this is the only mosque in the whole world to have a beautiful pink as a main ingredient of the color of tile. And it's really hard to mix because they add the gold, like a melt gold, as an ingredient of this beautiful color. So when we have a sun here, instead of getting fade, the color is remain forever. So the only mosque in the world to have a gold as a main ingredient of the pink. And then there is this building of Another thing is that the first mosque in the world again to have a picture of the cathedral and church as a design of the tile works, because like 150 years ago in 19th century, the governor's son, Mr. Nasir al-Mulk, he was with the king in one of his travel to Paris, and he brought a lot of postcard with himself, and he decided to add this postcard as a just like a beauty of tiles, and he absolutely has no idea that this is a church. He thought that this is only a house, and when they realized that this is a church, so it's too late to remove. and anything else about these beautiful columns, because this looks like this is a one piece Yes, column. this is all from one piece, and they have a beautiful spiral shape around them. And now you can see there are so many people Yes. around. We came here, हम लोग आए थे तकरीबन कोई सुबह 8 बजे के करीब, तब यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग नहीं थे।
हम लोग अभी मस्जिद की एंट्रेंस पे आए हैं, जहाँ से हम पहले गुजर के चले गए थे क्योंकि उस टाइम रश नहीं था अंदर, तो हम चाहते थे अंदर से ज़रा देख लें। यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत किस्म का सिमिलर जिस तरह का अंदर काम हुआ उससे भी ज़्यादा खूबसूरत यहाँ पे भी टाइल वर्क किया गया। उसके अलावा मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। यहाँ पे आप जो देख रहे हैं ना, जो टाइल्स, इनके दरमियान में हर दूसरी टाइल के हर दरमियान में एक लकड़ी का पीस है। आपको ईरान में और ऊपर उज़्बेकिस्तान वगैरह के रीजन में जितनी भी मस्जिद ईरानियन स्टाइल में बनी होंगी, इस रीजन में वो आपको नज़र आएंगे, क्योंकि यहाँ पे अर्थक्वेक आते हैं, उससे थोड़ा सा प्रेशर जो वो लकड़ी थोड़ा ज़्यादा एब्जॉर्ब कर जाती है, तो इस वजह से यहाँ पे यूज़ की गई है। और आप शायद जहाँ पे भी आप ईरान में जाएंगे मस्जिद देखेंगे, टाइलों के दरमियान में एक लकड़ी का पीस होगा, वो आपको यहाँ पे नज़र आएगा। नादिया मुझे नाश्ते के लिए लेके आई है बिल्कुल मस्जिद के साथ सेम स्ट्रीट में एक छोटा सा ट्रेडिशनल बहुत ही खूबसूरत सा कैफ़े है। और नॉर्मली तो नाश्ता हम करते हैं सुबह स्टार्ट में, लेकिन आज हमने क्योंकि मस्जिद देखने जाना था, वहाँ से यहाँ पे पहुँचे हैं जी नाश्ते पे। और मेरे सामने आप देख रहे हैं ये बहुत ही खूबसूरत किस्म के कप में हमारे पास कैपेचिनो है, कॉफ़ी, और साथ में जिस तरह चाय के साथ चॉकलेट मिलती है सिमिलरली यहाँ पे भी है। उसके अलावा जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है वो है यहाँ पे ऑमलेट। ऑमलेट ऑफ कोर्स एग तो होंगी, अंडे तो उसके अंदर, और लेकिन ये बनाई जाती है यहाँ पे स्पेशल जो है टोमेटोज़ के अंदर। उसके अलावा यहाँ पे एक ट्रेडिशन है कि साइड पे आपको यहाँ पे मिंट है और कुछ इस तरह के, आई थिंक इसका मुझे उर्दू में नाम नहीं याद आ रहा, ये कुछ पिकल्स हैं और साथ में अनियंस हैं, तो ये यहाँ पे इसके साथ सर्व की जाती है स्पेशल रोटी। नादिया, व्हाट वाज द नेम ऑफ दैट? Sangak. सेंगक। और ये बनाई जाती है जी स्पेशल स्टोन पे। तो इसको खाने का इनका तरीका है जी कि इसके ऊपर आप ऑमलेट डालेंगे, ठीक है, हम भी कोशिश करते हैं जिस तरह शराजी खाते हैं अपना खाना, और उसके बाद सो यू ऐड लिटिल बिट ऑफ एवरीथिंग दैट यू हैव ऑन द साइड। बस थोड़े से हम ये डाल लेते हैं और रोल इट। So you have your breakfast here. यहाँ का खाना जी बहुत अच्छा था, और कैफ़े जहाँ पे हमने खाना खाया उसका नाम है जी सल्तनत बानो। बिल्कुल पीछे आप मेरे देख रहे हैं मस्जिद है, इसी रोड के ऊपर यहाँ पे ये कैफ़े है, तो अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं तो ट्राई कर सकते हैं। थैंक यू सो मच नादिया फॉर ब्रिंगिंग मी हियर। सो नाउ वी आर वॉकिंग थ्रू द स्ट्रीट्स ऑफ Shiraz. This is Yes, the the center name of of the. the street is Lotfali Khanazan. This is Street. the center of Tehran, Shiraz. Shiraz downtown, yes. Shiraz downtown, and I can see that most of the places are still not open because you said that the Shirazi people are Kind of lazy. kind of lazy people. और अभी हमें यहाँ से लगेंगे तकरीबन कोई 10 मिनट की वॉक करते करते हम लोग जाएंगे जी नारंजस्तान पैलेस। Yes. दिस इज़ द पैलेस। यहाँ Yes. चलें जी, अभी हम वहाँ चलते हैं और आप लोगों को वो पैलेस दिखाते हैं। नारंजस्तान पैलेस में जब बंदा इंटर होता है तो बाहर से ऐसे लगता है कि अंदर कुछ भी नहीं है, लेकिन जैसे इंटर होता है आपको बहुत ही इम्प्रेसिव व्यू नज़र आता है गार्डन्स का। पीछे जो आप देख रहे हैं ये है पैलेस, और इसका नाम नारंजस्तान इस वजह से क्योंकि यहाँ पे हैं जी सावर ऑरेंज ट्रीज़, जिसकी वजह से इसे कहते हैं जी पैलेस ऑफ ऑरेंज ट्रीज़। 19th सेंचुरी में बना है, सिमिलर उसी टाइम पीरियड में जब पीछे आपने जो मस्जिद देखी है वो भी बनी थी, और खजार डेंसिटी थी। मिस्टर खवाम वाज द गवर्नर, और No, he's a governor. या और नासरुल मुल्क का फादर था, ही Yes. वाज द Yes. फादर ऑफ So, नासरुल yeah. मुल्क। या तो इसी वजह से यहाँ पे जो आपको टाइल वर्क देखने को मिलेगा सिमिलर सा है, उसी तरह की पिंक टाइल्स हैं,
और बहुत कुछ सिमिलरिटीज़ आपको यहाँ मिलेंगी। ये एक्चुअली उस दौर में था, यहाँ पे जो टाउन सेंटर या सिटी हॉल जहाँ पे टैक्स वगैरह कलेक्ट किया जाता था, और उसके अलावा कोई भी अगर लीगल मैटर्स होते थे तो वो यहाँ पे सॉल्व किए जाते थे। अभी हम अंदर जाते हैं क्योंकि अंदर यहाँ पे इट इज़ फेमस फॉर Beautiful mirror section. या, तो जाके आपको वो दिखाते हैं, और उसके अलावा हमें कोई और चीज़ नज़र आए तो वो भी आपको दिखाते हैं। सो लेट्स गो नादिया। Let's go. अभी हम लोग जी नारंजस्तान पैलेस में खड़े हुए हैं, और इतना इम्प्रेसिव यहाँ पे शीशे का काम किया गया जो मैंने हार्डली ही किसी और जगह पे देखा। और इस शीशे की ख़ास बात ये है क्योंकि ये शराजी स्टाइल में बनाया गया है, और शराजी स्टाइल ये कि आपको 6 से 7 कलर्स जो हैं वो डिफरेंट कलर्स इसमें देखने को मिलते हैं। अभी जिस जगह पे हम लोग खड़े हैं ये था जहाँ पे गवर्नर बैठता था, इसके बिल्कुल सामने जो है हॉल था। तो ये रूम और सामने वाला जो हॉल है यहाँ पे शीशे का काम किया गया है। इधर जब वो टैक्स कलेक्शन के लिए जब बंदे आते थे बाहर से तो फिर यहाँ पे आते थे। उसके अलावा यहाँ पे 4-5 और डिफरेंट रूम्स हैं, और हर रूम डिफरेंट स्टाइल में बनाया गया है। कुछ सिंपल हैं, कुछ के ऊपर टाइल वर्क बहुत इम्प्रेसिव किया गया, सिमिलरली जिस तरह बाहर किया गया था। और इसकी जो सेकंड फ्लोर थी वहाँ पे इन्होंने बनाया जहाँ पे रेस्ट करने के लिए लोग जाते थे। और उसकी जो छत है उसके ऊपर एक चीज़ मैंने नोटिस की कि ईरानियन फेस की एक औरत है जिसने कपड़े पहने हुए यूरोपियन स्टाइल में। उसके अलावा आपको पिक्चर्स वगैरह मिलेंगी यूरोपियन टाउन्स की, क्योंकि जब ये बाहर गया था यूरोप का टूर करके गया था तो वहाँ पे इसने पोस्ट कार्ड कुछ कलेक्ट किए थे, और वो पोस्ट कार्ड पे इसने जो है ना पेंटिंग्स वगैरह बना दी थी। यहाँ पे अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो ऊपर सीलिंग के ऊपर आप देख रहे हैं, यहाँ पे स्टाइल ये होता था कि जिस तरह का सीलिंग होगी उसी तरह का नीचे जो वो कारपेट बनाया जाता था, सिमिलर उसी स्टाइल में। अभी यहाँ पे कारपेट तो नहीं मिल रहा है, लेकिन यह कि सीलिंग बहुत ही खूबसूरत है। मैं ये सोच नहीं सकता कि अगर उसी स्टाइल में नीचे कारपेट होगा तो ये कितनी खूबसूरत जगह लगेगी। थोड़ा सा हम जो है वो रूम्स वगैरह फिरते हैं, देखते हैं, और उसके बाद हम लोग दोबारा जो है वो सिटी की तरफ जाएंगे। سلام عزیزم، چطوری؟ خوبی کتا؟ دست کردی عزیزی. पैलेस से तकरीबन कोई 10 मिनट की वॉक करने के बाद हम लोग पहुँचे हैं जी उर्दू बाज़ार में। मैंने एक्सपेक्ट कर रहा था कि शिराज़ में आपको उर्दू बाज़ार देखने को मिलेगा, और ये बाज़ार फेमस है जी अपनी फैब्रिक्स के लिए। बहुत ही कलरफुल फैब्रिक्स यहाँ पे मिल रही होती है, और स्पेशली ये फैब्रिक्स जो हैं यहाँ के जो ईरान के नोमैंड्स हैं वो अपनी शादियों वगैरह में पहनते हैं। तो यहाँ पर आपको बहुत ही कलरफुल वो चीज़ें मिल रही होंगी, और ये सब कुछ इम्पोर्ट होता है जी आजकल दुबई से। और दुबई में आप देखें तो पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश से जी सारी फैब्रिक जाती है। कुछ जगहों पे आपको स्पेशली जो यहाँ की पाकिस्तान या इंडिया से आपको जो है ना वो स्पेशल खाने की चीज़ें वो भी यहाँ पे नज़र आ रही होंगी, थोड़ी सी हल्की फुल्की। इधर मेरे ख्याल में मैं देखता हूँ ज़रा, यहाँ पे कुछ पड़ा हुआ है, ये चेक करें, ये निम्को टाइप है, ये हमारे एरियाज़ में नज़र आ रही होती है आपको। ये आपको सारी चीज़ें यहाँ पे नज़र आती हैं। और ये बाज़ार आगे जाके कनेक्ट करता है वकील बाज़ार से, जो कि यहाँ का सबसे पुराना वकील बाज़ार इज़ द ओल्डेस्ट बाज़ार, isn't it? Yes, 250 years old. 200 and this बाज़ार This bazaar is like 19th century. 19th century, ओके। तो हम लोग आहिस्ता आहिस्ता वॉक करते करते जो वो वकील बाज़ार की तरफ जाते हैं, और आप लोगों को वो दिखाते हैं। उर्दू
उर्दू बाज़ार के बिल्कुल साथ ही है जी एक ट्रेडिशनल बहुत ही पुराना कॉपर बाज़ार यहाँ का, जो कि पहले तो भरा होता होगा कॉपर की, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ कॉपर ही बिकता था। अब यहाँ पे सिर्फ 3 या 4 शॉप रह गई हैं, क्योंकि बाकी मोस्टली जो है यहाँ पे लोग जो है वो कॉपर अब यूज़ नहीं करते, तो वो ट्रेडिशन यहाँ से ऑलमोस्ट ख़त्म होना लगी है। इतनी खूबसूरत चीज़ें लग रही हैं। अभी मेरे सामने मैंने इनसे पूछा है, ये चैनक है, ठीक है, मैंने पूछा कि ये कितने की होगी, तो बता रहे हैं कि $15 की। और मेरे ख्याल में अगर आप स्टील की भी कोई चीज़ लेंगे तो ये इससे महंगी ही मिलेगी। उसके अलावा इधर मेरे पास ये एक पूरा सेट पड़ा है, मैंने इसकी थोड़ी सी प्राइस पूछी है, तो वो बता रहे हैं कि तकरीबन कोई $30 से $35। और अभी यहाँ पे ख़रीदार कम है, क्योंकि मोस्टली इस एरिए में ज़्यादातर चीज़ें जो हैं वो अब चाइनीज़ बिक रही हैं। आगे भी सारा कपड़े की मार्केट है, और उसी तरह की वो जो रेडीमेड गारमेंट्स, इस तरह की चीज़ें, ट्रेडिशनल बाज़ार से चीज़ें ऑलमोस्ट ख़त्म होती जा रही हैं। तो अभी हम वकील बाज़ार की तरफ जाते हैं, देखते हैं कि वहाँ पे भी कुछ ट्रेडिशनल बचा है कि नहीं बचा, तो चलते हैं। थैंक यू सो मच, ममनून। मैंने इनसे ये कहा कि जब मैं अपना घर बनाऊंगा ना, तो सारी चीज़ें ईरान से आके ख़रीदूंगा, क्योंकि एक तो सस्ती भी और बहुत अच्छी क्वालिटी की भी मिल रही हैं। ममनून। शाले ईरान में खुश बिकता है। ममनून। अभी हम वकील बाज़ार से वॉक करके जा रहे हैं। What is this famous for? Now we see lots of smell. Yes, fabrics, snacks, spices and sweets. यहाँ से जब आप गुजर रहे होते हैं ना, तो आपको डिफरेंट स्मेल्स जो है ना वो आना शुरू हो जाती हैं। और एक जो एटमॉस्फेयर है यहाँ पे वो बड़ा पीसफुल है, क्योंकि बाकी बाज़ार्स में ना मोटरसाइकिल्स और इस तरह की चीज़ें जो वो गुजर रही होती है, लेकिन यहाँ पे बड़ा पीसफुल है। तो जिसने जो ख़रीदना है वो ख़रीदे और फिर आगे वॉक करते जा रहे हैं। यहाँ पे आपके साथ कोई ये नहीं कहता कि धक्के से कि आपने ये चीज़ लेनी है, ये लो, लेना हो तो लें, नहीं लेना तो आगे गुजर जाएं। جنسش رو ببر تو لباسشویی بشور، 1 سال ضمانت رنگ داره. تضمین به اگر رنگش ما اینجا نماینده گره آقا است خیال शराज़ आएँ, और अगर शराज़ में आपने शराज़ का फ़ूड इंक्लूड नहीं किया तो शराज़ का व्लॉग जो वीडियो है वो थोड़ी सी अधूरी रह जाती है। तो हम लोग यहाँ पे ट्रेडिशनल शराज़ी फ़ूड ट्राई करने के लिए आए हुए हैं। एक छोटा सा बुटीक होटल या गेस्ट हाउस जिसे कह सकते हैं, पराहामी हाउस। बहुत ही खूबसूरत इसकी वाइब आ रही है, और यहाँ के ऑनर ने मुझे पर्सनली जो है ना वो एक बहुत ही खूबसूरत छोटी सी लोकेशन पे बिठाया है। फ़ूड मेरे सामने आ चुका है, बहुत ज़्यादा फ़ूड है, लेकिन बहुत खूबसूरत और बहुत टेस्टी लग रहा है। तो मैं थोड़ा सा आपके इनके ऑनर से मिलवाता हूँ, और उसके बाद वही एक्सप्लेन करेगा कि ये सारे फूड्स जो हैं वो कौन से हैं। So in front of me is Mr. Sarush, who is the owner of Parahami House. Welcome. And here you can see all the food that he has just brought here. First of all, thank you so much, Sarush. You're welcome. And can you please explain just a little bit all the food that we have just in front of us? Sure. These three are original Shirazian. I mean Qambar polo, Kalam polo, and Kate goje. This one is ingredient is meatball, baby grapes, pomegranate, rice, and onion. This one is Kalam polo. Kalam means cabbage. Cabbage, rice, meatball, and herbs. This one is Kate goje. It's tomato, lamb chop, and rice. And we serve it with different things like Shirazian salad, different kind of yogurt, and Shirazi halwa, and different kind of drinks. Yeah. Okay, so हम लोग अभी अपना जो वो फूड ट्राई करते हैं, और उसके बाद जितनी भी थोड़ी सी और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होगी वो आपको मैं बाद में बताता हूँ। So Sarosh, should we start the food? Why not? So which one would you say I start the first? Kalam polo. Kalam Palau? Yeah. Kalam Palau. So As I told you, cabbage, herbs, meatball, and rice. I just take some out of it. 1 spoon kalam polo with Shirazian salad. So there are lots of salads. Yeah, it's
just this one is the Just this for one. us. Just this one is salad. Other the- one are burani. As I Burani told is the you, yogurt with a yogurt with different things: cucumber, eggplant, one kind of onion, and spinach. spinach. Okay, Yeah. yeah. It's really good. Really good. In our culture, I mean Persian culture, our food aren't very spicy. It's spicy, but not very much like you. And in different You parts use a lot of herbs instead of spices. yeah, yeah, and we add different things. It depends of where you are. For example, in Shiraz, we add especially lemon juice and baby grape juice to our food to make it sour. I saw a lot of places have a lot of lemon juice on the street Yeah, because in Shiraz you have a lot of lemon. yeah, maybe one family use more than 100 liters of lemon juice per year. यहाँ पे जी आप मेरे सामने देख रहे हैं 3 different types of drinks. So we have here saffron. Gulab zafaran. Saffron. Gulab means rose water. Rose and, water. Yeah, saffron. Inside is the saffron, Yeah. and this one is Gulab of limon. It's a lemon juice with rose water. yeah. We also say gulab in our language Really? as well. And this one is I can. But it's as I told Yeah. you. So, which one would you prefer if someone comes? They should drink apart from Lemon the juice. Lemon juice. Yeah. This one. So let me have a little bit of lemon juice. I can even taste the gulab inside. The gulab taste is something unique, something different. I never had a gulab as a drink. Really? Yeah, it's the first time. A lot of food I'm trying for the first time. शिराज से जाने से पहले मैं यहाँ का जो हलवा है ना वो ज़रूर ट्राई करना चाहूँगा और कहते हैं कि यहाँ का हलवा बहुत अच्छा है, आप चेक कर सकते हैं। और मुझे कंफर्म इसके कलर से ये लग रहा है कि इसके अंदर भी ज़ाफ़रान वगैरह जो वो डाला गया है। तो टेस्ट करते हैं ज़ाफ़रान का हलवा। मैं ज़रा अपने लिए चम्मच ढूंढ लें, ज़रा इधर दो थोड़ा सा दूर पड़े। ये आ गया जी, इसी से काम चलाते हैं। लेकिन यार चेक करें इसके ऊपर, उसके ऊपर गुलाब और पिस्ताशियो और आई थिंक ये वाले कौन से नट हैं, ये इसको उन्होंने बादाम है। मैं सोच रहा था कि थोड़ा सा वो सख्त वाला होगा, लेकिन नहीं, इस तरह बिल्कुल भी नहीं है। चेक करें जी। इसमें जो गुलाब का टेस्ट है ना यार, बहुत आला, बहुत आला। मैं तो फ़ैन हो गया हूँ गुलाब को। कभी मैंने खाने में खाया नहीं था, लेकिन फ़र्स्ट टाइम मुझे मौका मिला कि गुलाब को भी आप ट्राई कर सकते हो। पहले तो मेरे पास शरोस बैठा हुआ था, इसलिए मुझे झिझक के बोलना पड़ता है, क्योंकि मैं खाना खाते हुए इतना अच्छा फूड रिव्यूअर हूँ नहीं। कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को वो सारी चीज़ें दिखा सकूँ जो मुझे लगता है कि यार ये दिखानी चाहिए। और मैं पर्सनली ऑनेस्टली कह सकता हूँ कि अगर आप शिराज़ आए ना तो परहामी ट्रेडिशनल हाउस में लंच करने आए, आपको इससे बेहतर अच्छी जगह ना कोई नहीं मिलेगी। और ये मेरा पर्सनल आइडिया है। मैं अगर शिराज़ आऊँगा ना तो मैं यहाँ पे ज़रूर विज़िट करूँगा। तो हम अपना हलवा खाते हैं और उसके बाद आपको जी बाकी शहर की जगह दिखाएंगे। हाँ, बहुत आला, बहुत ही आला खाना है यहाँ का।
शिराज जी ज़ान डायनेस्टी का कैपिटल था और उसी दौरान यहाँ का जो किंग था करीम ख़ान, जो अपने आप को किंग नहीं कहता था, इसलिए उसके नाम के साथ कोई शाह या कुछ इस तरह नहीं लगा हुआ। वो अपने आप को कहता था कि मैं हूँ जी अपनी राया का वकील। इसी वजह से उसका नाम भी जो है ना, निक नेम जो था वो वकील ही पड़ गया। तो पीछे जो मैं बाज़ार में गया था वो वकील बाज़ार, और यहाँ पे आप जो पीछे देख रहे हैं ये था उसका पैलेस। वो तकरीबन कुछ 60 साल का था जब वो किंग बना था, और उसका इरादा था कि एक इस तरह का पैलेस होना चाहिए तो थोड़ा सा सिक्योर हो, क्योंकि वो बूढ़ा है और अपनी फैमिली वगैरह को बचा सके इन केस अगर कोई हमला वगैरह होता है तो। इसलिए आप जो इसको देख रहे हैं ये पैलेस बाहर से बिल्कुल लगता ही नहीं है। इसे कहते हैं जी आर्क, और बाहर से जो वो इस तरह जिस तरह सितादाल वगैरह या सिटी वॉल्स कुछ इस तरह की हैं। तभी हम चलते हैं अंदर से और आपको अंदर से पैलेस दिखाते हैं। कहते हैं कि अंदर से ये बहुत खूबसूरत है। So Nadia is driving the car, and I think a lot of people would love to know about the life of women in Iran. Anything you want to add? So I lived for a whole entire of my life in Iran. I went to the university, I worked as a tour guide and also driving tourists all around the Iran for almost 10 years now. It was a challenging for me, but I did it and I'm really happy about that. And I should say a lot of strong women lives in Iran and they really like their life. So is there any restriction from the society that you are as a tour guide, you are going with the people you probably don't know, but is it acceptable by your family and friends and Yes, everyone in the society? Thanks God. I born and raised in the family that they really support me, and in the town that I live, because my hometown is 1.5 million, they respect and they support me, and I'm very happy about that. And I'm very happy to have you as a Thank tour you so guide. much. Thank you It's so my much. pleasure. शिराज में आई थिंक कि एक चीज़ जो है ना वो सबसे मशहूर है, वो है यहाँ का शराजी फ़लूदा। और हर किसी ने कहा है कि फ़लूदा यहाँ का ज़रूर ट्राई करना है। कुछ ने तो कहा है कि आप बड़े डिसअपॉइंट होंगे, कुछ कहते हैं कि बहुत अच्छा होगा। अभी है जी मेरे सामने ये शराजी फ़लूदा, ये हमारे फ़लूदे से बहुत मुख्तलिफ है। इसमें है जी ये नूडल्स, ये क्रंची नूडल्स टाइप हैं। उसके अलावा इसके अंदर है स्टार्च, शुगर और रोज़ वाटर, लेमन का भी थोड़ा सा आपको टेस्ट इसमें देखने खाने को भी मिलेगा। तो अभी यहाँ की जो सबसे मशहूर शॉप है वहाँ पे आए। व्हाट्स द नेम ऑफ द बाबा पास्तानी। छोटे से हम कॉर्नर में बाहर बैठ के खा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कोरोना की वजह से रिस्ट्रिक्शन अंदर नहीं खा सकते। तो ज़रा ट्राई करते हैं, उम्मीद है कि डिसअपॉइंट नहीं होंगे। इट इज़ वेरी वेरी स्वीट, और हमारे फलूदे से ये बहुत मुख्तलिफ है। उसके तो बिल्कुल करीब में भी टेस्ट भी नहीं है, मतलब बहुत डिफरेंट है। ये नूडल्स हैं और उसके अंदर शीरा डाला हुआ है, और साथ में लेमन का टेस्ट जो है ना वो आ रहा है मुझे। तो मेरे ख्याल में बस ठीक है। आई वुड प्रेफर अपना कसूरी फलूदा। आई वुड स्टिल प्रेफर कसूरी फलूदा। लेकिन अभी आया, थोड़ा सा खाएंगे, बहुत ज़्यादा मैं खा नहीं सकता क्योंकि ये बहुत मीठा है।
हम लोग जी फाइनली पहुँचे हैं हाफिज़ के मकबरे पे। हाफिज़ ईरान के सबसे मशहूर 14वीं सेंचुरी के और सबसे बड़े पोएट हैं और मेरे हाथ में भी इनकी बुक है। इससे समझा जाता है कि ये ईरान में सेकंड होलीस्ट बुक है। हर घर में आपको होली कुरान और हाफिज़ की बुक ज़रूर मिलेगी। इसके अंदर 500 के करीब इनकी पोएम्स हैं और जब भी कोई खुशी गमी कोई भी मौका होता है, फैमिली इकट्ठी बैठती है तो इस बुक को ओपन किया जाता है और कोई ना कोई पोएम पढ़ी जाती है। पूरी दुनिया में जहाँ पे भी ईरानी रहते हैं, जब भी उनको मौका मिलता है वो यहाँ पे ज़रूर आते हैं। अभी भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश है और ये पीछे जो आप मेरे पीछे इनकी श्राइन या मकबरा देख रहे हैं, यहाँ पे इनकी कब्र है और उसके ऊपर स्टोन के ऊपर इनकी एक सबसे मशहूर पोएम जो है वो लिखी गई है। उसके अलावा ये जो डिज़ाइन किया गया है, इसके 8 पिलर्स हैं और क्योंकि जन्नत के 8 दरवाजे हैं तो एक पिलर जो है वो हर दरवाजे को रिप्रेजेंट करता है और ऊपर जो छत है वो इस तरह जिस तरह सूफियों के सर पे टोपी होती है ना, ये उसको रिप्रेजेंट करती है। तो हम अभी बैठते हैं, नादिया को कहते हैं कि कोई ना कोई पोएम जो है वो हमें सुनाए और आप लोगों को भी सुनाते हैं। ये थोड़ा होगा पर्शियन में, लेकिन आप भी इंजॉय करेंगे। مژده وصل تو کو که از سر جان برخیزم طائر قدسم و از دام جهان برخیزم به وفای تو که گر بنده خویشم خوانی از سر خواجگی کون و مکان برخیزم یا رب از ابر هدایت برسان بارانی بیشتر زان که چو گردی ز میان برخیزم بر سر تربت ما بیمه و مطرب منشین تازه شوقت ز لحد رقص کنان برخیزم گرچه پیرم تو شبی تنگ در آغوشم گیر تا سحرگه ز کنار تو جوان برخیزم خیز و بالا بنما ای بت شیرین حرکات که چو حافظ ز سر جان و جهان برخیزم. Finish. अभी जी मैंने हज़रत शाह चिराग श्राइन विज़िट की है जो कि शिराज़ में वन ऑफ द होलीएस्ट श्राइन है और ये इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के छोटे भाई जब यहाँ से मशहद की तरफ जा रहे थे, यहाँ से गुज़र रहे थे तो अब्बासी खिलाफत के शाह ने उनको यहाँ पे शहीद कर दिया गया था और उनकी ये यहाँ पे श्राइन बना दी गई थी। मेरे ख़्याल में मैंने जितनी भी श्राइन्स अभी तक विज़िट की होंगी ये उनमें से सबसे इम्प्रेसिव है। अंदर इतना खूबसूरत, इसके अंदर जो शीशे का और जो सिल्वर का काम हुआ है ना, बहुत इम्प्रेसिव है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अंदर कैमरा लेके जाने की इजाज़त नहीं थी। मैंने कोशिश की है, जितना मैं मोबाइल से कैप्चर कर सकता था किया और उम्मीद है कि आप लोगों को वो पसंद आया होगा और ना सिर्फ ये फुटेज पसंद आई होगी बल्कि शिराज़ का पूरा व्लॉग। बहुत मेहनत की है और नादिया वन ऑफ द बेस्ट टूर गाइड। अगर आप हाईली रिकमेंडेड, अगर आप शिराज़ आ रहे हैं तो उनका जो इंस्टाग्राम का लिंक है वो इसकी डिस्क्रिप्शन में वीडियो की आपको मिल जाएगा, उससे कांटेक्ट करें। चार्जेस भी उसके मुनासिब है। मैंने उससे पूछा था लेकिन वो कह रही थी कि आप वीडियो में मत बताइए कि आपने मुझे कितने पैसे पे किए, इसलिए मैं नहीं बता रहा। अगर आप आ रहे हैं तो उससे कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरा व्लॉग जो है वो अच्छा लगा। तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर का बटन दबाना ना भूलिएगा और आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले व्लॉग में। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।